حالیہ دنوں میں ایران کو ایک دفعہ پھر اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا ایک ساتھ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف ایران کے جوہری پروگرام کے معاملے پر کشیدگی دوبارہ سے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور ایران بھی جواب دے رہا ہے، تو دوسری طرف ملک کے اندر مسلسل کمزور ہوتی ہوئی معیشت، کرنسی کی غیر معمولی گراوٹ اور سونے سمیت کچھ دیگر اشیاء کی قیمتوں میں حالیہ دنوں میں تیزی سے اضافے نے ایرانی حکومت پر عوامی دباؤ میں اچانک اضافہ کر دیا ہے۔ اتوار سے ایرانی تاجر، طلبہ اور عوام سڑکوں پر ہیں۔ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اور اس احتجاج کے وائلنس کی شکل اختیار کرنے اور حکومتی کریک ڈاؤن شروع ہونے کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں، بلکہ اب سے کچھ دیر پہلے رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ آج ہونے والے مظاہروں میں کئی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا میں ان مظاہروں کا موازنہ 2022 میں مہسا امینی نامی لڑکی کی ایرانی موریلٹی پولیس کی حراست میں ہلاکت کے بعد بھڑک اٹھنے والے مظاہروں سے کیا جا رہا ہے، مگر خود ایرانی حکام اور سرکاری اور نیم سرکاری میڈیا عوامی احتجاج اور مظاہروں کو تسلیم تو کر رہا ہے، مگر انہیں معمول کے مظاہروں سے تشبیہ بھی دے رہا ہے، جس سے حکومت کو کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے یہ کہا جا رہا ہے۔ تاہم وہ یہ موقف بھی اختیار کر رہے ہیں کہ ایران مخالف قوتوں اور اسرائیل کے ایجنٹ مہنگائی کے خلاف احتجاج کو ہائی جیک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام خبردار کر رہے ہیں کہ ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ خود ایرانی نیم سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق انٹیلیجنس اہلکاروں نے 7 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن کے بارے میں ابتدائی تحقیقات سے اشارہ مل رہا ہے کہ یہ افراد بیرون ملک مقیم ایران مخالف نیٹ ورک سے جڑے ہوئے تھے اور احتجاج کو وائلنس کی طرف لے جانے کے مشن پر تھے۔ عام بات یہ بھی ہے کہ خود ایرانی صدر مسعود پزشکیان مظاہرین کو جائز مطالبات پر بات چیت کی پیشکش کر رہے ہیں، پرامن رہنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی عوامی دباؤ کے بعد ایران کے مرکزی بینک کے گورنر کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے ایران بین الاقوامی پابندیوں اور تجارتی بندشوں کی وجہ سے سنگین معاشی مسائل کا شکار ہے۔ مہنگائی اور کرنسی کی گراوٹ بے قابو ہوتی جا رہی ہے، جس سے عوام کی قوت خرید سکڑتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ گزشتہ دنوں ایک امریکی ڈالر 14 لاکھ سے زائد ایرانی ریال کا ہو گیا تھا، جس سے تاجر طبقہ شدید متاثر ہو رہا تھا۔ مختلف شہروں میں جاری حالیہ احتجاج بھی ایرانی کرنسی کی اس غیر معمولی گراوٹ اور مہنگائی میں مسلسل اضافے کو لے کر اتوار کو دارالحکومت تہران سے شروع ہوا تھا، جہاں کچھ مارکیٹس اور بازاروں میں تاجروں نے اپنی دکانیں بند کر دی اور احتجاج شروع کر دیا۔ نعرے بازی کی، حکومت سے فوری اور مؤثر مانیٹری اصلاحات اور معاشی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اینٹی رائٹس فورس بھی تہران کی سڑکوں اور مارکیٹس میں نظر آئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پیر کو بھی احتجاج جاری رہا، بلکہ اس کا دائرہ تہران سمیت دوسرے شہروں تک بھی پھیل گیا اور تاجروں کے علاوہ عوام بھی مظاہروں کا حصہ بن گئے۔ اور پھر منگل کو ایرانی طلبہ بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ کچھ یونیورسٹیز میں بھی احتجاج کیا گیا، جبکہ کل بدھ کو میڈیا رپورٹس کے مطابق فارس کے صوبے میں مظاہرین نے ایک سرکاری عمارت میں گھسنے کی کوشش کی، تاہم سیکورٹی اہلکاروں نے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ اب یہ خبریں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں کہ مہنگائی کے خلاف عوامی احتجاج کے دوران ایران کی پیراملٹری فورس بسیج سے تعلق رکھنے والے ایک اہلکار مارا گیا۔ ایران کے معاشی بحران اور حالیہ احتجاج کے حوالے سے الجزیرہ میں شائع ہونے والی تفصیلات کے مطابق اتوار کو تہران میں تاجروں نے کرنسی کی تیزی سے گرتی ہوئی قدر کی وجہ سے اپنی دکانیں بند کر دیں۔ تہران میں 2 بڑے ٹیکنالوجی اور موبائل فون شاپنگ سینٹرز کے قریب تاجروں نے احتجاج کیا، نعرے بازی کی، جبکہ پیر کو بھی احتجاج کے مزید واقعات سامنے آئے اور تاجروں کے علاوہ دیگر افراد بھی مظاہروں میں شامل نظر آئے۔ رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ وسطی تہران میں بھی مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک ساتھ ہیں، جبکہ سڑکوں پر اینٹی رائٹ فورس کی بھاری نفری تعینات تھی اور متعدد ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ آنسو گیس کا استعمال کر کے لوگوں کو منتشر کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق تہران کے گرینڈ بازار اور اس کے اطراف میں بھی تاجروں نے دکانیں بند کر دی تھیں، جبکہ بعض ویڈیوز میں دکاندار دوسرے دکانداروں سے بھی دکانیں بند کرنے کی اپیل کرتے نظر آئے، جبکہ منگل کو طلبہ بھی سڑکوں پر احتجاج کرتے ہوئے نظر آئے۔ ساتھ ہی خود ایرانی حکومتی میڈیا کے مطابق اصفہان، یزد اور زنجان میں یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں میں بھی مظاہرے ہوئے، جبکہ ایران کی لیبر موومنٹ سے وابستہ نیوز ایجنسی کے مطابق تہران سمیت ملک بھر کی 10 یونیورسٹیز میں طلبہ نے احتجاج کیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی احتجاج کو تسلیم کیا، ساتھ ہی فوراً یہ موقف اپنایا کہ تاجروں کو صرف معاشی حالات پر تشویش ہے، انہیں ایران کی مذہبی حکومت سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حکومتی خبر رساں ادارے ارنا نے دعویٰ کیا کہ موبائل فون فروخت کرنے والے تاجر ایرانی کرنسی کی تیزی سے گراوٹ کی وجہ سے اپنے کاروبار کو لاحق خطرات پر ناراض ہیں۔ پیر کو ایرانی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچی، یعنی ایک ڈالر 14,20,000 ایرانی ریال کا ہو گیا تھا، تاہم بعد میں اس میں کچھ بہتری نظر آئی، جبکہ ایک سال پہلے ایک ڈالر 8,20,000 ایرانی ریال کا تھا۔ تاہم کرنسی واحد مسئلہ نہیں ہے، ایران کئی برسوں سے بڑھتے ہوئے توانائی کے بحران کا بھی سامنا کر رہا ہے، جو وقتاً فوقتاً جان لیوا فضائی آلودگی کا سبب بھی بنتا ہے اور ہر سال ہزاروں جانیں لے لیتا ہے۔ ساتھ ہی پانی کے بحران کی وجہ سے تہران اور ایران کے کئی بڑے شہروں کو پانی فراہم کرنے والے زیادہ تر ڈیم تقریباً ایمٹی لیول پر رہتے ہیں۔
रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को पार्लियामेंट में अपनी इंतजामिया की जानिब से पेश किए गए मुतनाज़ बजट बिल का दिफा करते हुए सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सूरत हाल की एक परेशान कुन तस्वीर पेश की। उनके इंतहाई कॉन्ट्रैक्शनरी बजट बिल में तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़ किया गया है, जबकि महंगाई 50% के करीब है, जो गुज़िश्ता कई सालों से दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई की शरह में से एक रही है। साथ ही टैक्स में 62% तक इजाफा मुतवक्के है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि वो मुझे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उजरत बढ़ानी होगी। कोई मुझे बताए कि मैं पैसा कहाँ से लाऊं। हालिया मुजाहिरों के तनाजुर में ईरान के मरकज़ी बैंक के गवर्नर को तब्दील कर दिया गया है। मरकज़ी बैंक के गवर्नर मोहम्मद रज़ा फरजीन ने इस्तीफ़ा दे दिया और अब्दुल नासिर हिम्मती को एक बार फिर गवर्नर तैनात कर दिया गया है। ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक हालिया दिनों में ईरानी करेंसी की तारीखी गिरावट हुई। इसी उतार चढ़ाव ने मार्केट के माहौल को मुतासिर कर दिया और मईशत के मुस्तकबिल के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। इस पेशरफ्त खासतौर पर मालियाती और गैर मुल्की ज़र मुबादला की पॉलिसियों की कारकर्दगी पर बढ़ती हुई तनकीद ने बिलाखिर हुकूमत के मरकज़ी बैंक के सरबराह को तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह खुद सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी मुतहर्रिक हैं। उन्होंने परसों लेबर और ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदों से मुलाकात की, उनके खदशात और मुतालबात सुने और मुआशी बहरान से निमटने के हवाले से तजावीज़ के हवाले से बातचीत की। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं अवाम के ज़रिया मुआश के बारे में रोज़ाना फ़िक्रमंद रहता हूँ। मॉनिटरी और बैंकिंग सिस्टम में इस्लाहात और अवाम की क़ुव्वत ख़रीद को महफूज रखने के लिए हमारे एजेंडे में बुनियादी इक़दामात शामिल हैं। मैंने वज़ीर दाखिला को हिदायत दी है कि वो मुजाहिरीन के नुमाइंदों से बातचीत के ज़रिए उनके जायज़ मुतालबात को सुने, ताकि हुकूमत मसाइल के हल के लिए पूरी क़ुव्वत लगा दे और ज़िम्मेदाराना रद्द अमल दे सके। मगर जहाँ ईरानी हुकूमत इस अवामी एहतजाज को तस्लीम करते हुए इब्तिदाई तौर पर बातचीत के ज़रिए मसला हल करने की कोशिश कर रही है, तो साथ ही साथ ईरानी हुकूमत और उससे मुंसलिक मीडिया ये खदशा भी ज़ाहिर कर रहा है कि ईरानी हुकूमत के मुखालिफिन और गैर मुल्की क़ुव्वतें अवामी मुजाहिरों से फ़ायदा उठाकर अपने मकासद हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। कल एक तकरीब में खिताब में सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान पर बैरूनी दबाव की निशानदही की और ख़बरदार किया कि अंदरूनी तक़सीम मौजूदा दबाव को मज़ीद बढ़ा सकती है। इत्तिहाद को मजबूत बनाना और मस्बत कारकर्दगी पर तवज्जो देना बहरानों और बढ़ते हुए दबाव से निमटने का जरिया है। साथ ही ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अवाम के रोज़गार से मुतालिक खदशात और एहतजाज को इंतहाई तहम्मुल और मुकम्मल जवाबदही के साथ हल किया जाना चाहिए और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के साथ बातचीत को तरजीह दी जानी चाहिए। साथ ही अवाम की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाने और मुआशी फ़ैसलों के तरीक़ाकार में इस्लाह के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाने चाहिए और इन्हें इंतज़ामी एजेंडे का हिस्सा बनाना चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने खदशा ज़ाहिर किया कि ईरान के दुश्मन और मुनज़्ज़िम गिरोह हर अवामी मुतालबे या एहतजाज को अपने तरबियत याफ्ता नासिर के ज़रिए बेअमनी और अफरा तफरी की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईरानी कौम ने बारहा अपने शऊर, आगाही और मुल्क की सलामती के लिए अपनी सच्ची फिक्र का सबूत दिया। ईरानी कौम के लिए खुद अवाम से बढ़कर कोई मुखलिस नहीं है और इसी वजह से अवाम के एहतजाज से भी मुकम्मल जवाबदही और जिम्मेदाराना रवैये के साथ निपटा जाना चाहिए। मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने मज़ीद लिखा कि ईरान के अवाम दुश्मन और उसके मज़मूम मकासद को पहचानते हैं और उनके मुकर्रर करदा अनासिर के अहदाफ को नाकाम बनाएंगे और एहतजाज को अफरा तफरी की तरफ जाने से रोकेंगे, जो दुश्मन का पहले से तयशुदा मकसद है। इस मामले में ईरानी सदर की जिम्मेदाराना मुदाखलत बर वक्त और ज़रूरी थी और हम इस बात पर जोर देते हैं कि अवाम की क़ुव्वत ख़रीद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी फ़ैसले करना, दुरुस्त फ़ैसलों और तरीक़ाकार में इस्लाह के लिए मरकज़ी बैंक की अथॉरिटी को बरकरार रखना और हुकूमत के मुआशी निज़ाम में यकसा और मरबूत फ़ैसलों को नाफिज़ करना और अवाम को इत्मीनान दिलाना आज ईरान को दरपेश इंतहाई ज़रूरी इक़दामात में से एक हैं। इसके अलावा ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने इस तरह के खदशात पर मबनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी करेंसी में गैर मामूली गिरावट के साथ साथ सोने और कुछ अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफे और मार्केट में हंगामा आराई की वजह से कुछ ताजिरों ने महदूद एहतजाज शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जारी हंगामा आराई और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में गिरावट की वजह से अपने मामूल के कारोबार से महरूम ताजिरों ने मार्केट की इस अफरा तफरी की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडीज से ज़्यादा मुनासिब और संजीदा मुदाखलत का मुतालबा किया है। उनमें से कुछ ताजिर जो अपनी दुकानों का भारी किराया भी अदा करते हैं, वो अपना कारोबार शदीद मुतासिर होने की वजह से किराया तक अदा करने से कासिर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस हकीकत से कतई नज़र कि ये शिकायत अपने आप में जायज़ हैं और हुकूमती अहलकारों को इन मसाइल के बारे में ज़्यादा जिम्मेदाराना और संजीदा रवैया इख्तियार करना चाहिए, मगर हमेशा की तरह ईरान मुखालिफ मीडिया और गैर मुल्की सिक्योरिटी इदारे अपने कुछ अंदरूनी एजेंटों के जरिए मौका मिलते ही सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं या कुछ मुजाहिरों में मौजूद रहे हैं और एहतजाज को बेअमनी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सहयूनी हुकूमत से वाबस्ता मीडिया आउटलेट्स और वर्चुअल अकाउंट्स गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान इस सिलसिले में एक ही फार्मूले पर अमल पैरा हैं और बड़े पैमाने पर बेअमनी और मुजाहिरों का मुतालबा किया जा रहा है।
ताहम अब तक ये कोशिशें नाकाम रही हैं और ताजिरों और आवाम से तवक्को की जाती है कि वो इस मंजर को बगौर और जिम्मेदारी से मुशाहिदा करें और इस मामले को हाईजैक होने और सिक्योरिटी का मसला बनने से रोकें। इस सारी सूरत हाल में ईरानी हुक्काम मुजाहिरों को मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करने वालों को खबरदार भी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा है कि मुआशी हालात के तनाजुर में भड़क उठने वाले मुजाहिरे जायज़ हैं, लेकिन अगर मुजाहिरों को मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। मगर हालिया दिनों में ईरान को सिर्फ बढ़ती हुई महंगाई और मुआशी क्राइसिस की वजह से अवामी दबाव का सामना नहीं, बल्कि ईरान की अमेरिका और इसराइल से कशीदगी भी बढ़ रही है। अमेरिका और इसराइल ये बयानियां बना रहे हैं कि ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम फिर से आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने धमकी आमेज़ लहजे में कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा होगा, मगर अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमारे पास उस प्रोग्राम को फौरी तौर पर ख़त्म करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस में खबर शाया हुई है कि एक अमरीकी एहलकार और 2 अमरीकी ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने 2026 में ईरान पर दोबारा हमला करने के इम्कान पर बातचीत की। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही ईरान के साथ जून में होने वाली 12 रोज़ा जंग को बड़ी कामयाबी समझते हैं, मगर नेतन्याहू की राय है कि ईरान को दोबारा अपनी सलाहियतें बढ़ाने से रोकने के लिए उस पर दोबारा हमला ज़रूरी हो सकता है। अमरीकी एहलकार के मुताबिक अगर अमरीका को लगता है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए हकीकी और काबिल तस्दीक इक़दाम कर रहा है तो सदर ट्रंप मुमकिन तौर पर ईरान पर हमलों के दूसरे राउंड की हिमायत करेंगे। लेकिन इस बात का तयन करना और मुत्तफ़िक़ होना असल मसला होगा कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है या नहीं। सदर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात और धमकी के बाद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने एक्स हैंडल पर किसी मुल्क का नाम लिए बगैर एक पोस्ट की और लिखा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानिब से किसी भी जारियत का बहुत शदीद और पछता देने वाला जवाब दिया जाएगा।